نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، کل ہم لوگوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بات کی کہ پہلے اس پر ہم نے دیکھا کہ تدبر کے 5 درجات تھے، وہ اس پر ہم نے بات کی، کیسے پڑھنا ہے، تدبر کے 5 درجات ہم نے دیکھے تھے: جاننا، سمجھنا، سوچنا، متاثر ہونا اور پھر عمل کرنا۔ تو تفکر پہ پھر ہم نے کل بات کی تھی تیسرے لیول پہ کہ سوچنے کے 6 مرحلے، کہ جب قرآن مجید کو بھی ہم نے کھولا نہیں ہے، اور وہ سب سے پہلے کیا ہے کہ دل کے احساس کے ساتھ غور و فکر کرنا۔ اس میں 3 باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ قرآن کے ساتھ میں زندہ ہوں، قرآن کے ساتھ میں بینا ہوں، اور قرآن کے ساتھ ہی میں ہدایت پر ہوں۔ اس کے بعد آپ کو دوسری بات یہ بتائی تھی کہ قرآن کا مخاطب میں اور میرا دل ہے، تو ہمیں اپنے دل کو چیک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، اور اس کا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ دل کا لفظ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کا اثر جو ہے وہ سب سے پہلے دل پر ہوتا ہے، یہ تیسری بات تھی۔ اور چوتھا آپ کو یہ بتایا تھا کہ دل سے غور و فکر کرنا یہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے۔ اس پر ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ پھر آپ کو تیسرا مرحلہ بتایا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے، کہ آیات الایمان سے شروع کرنا ہے یا آیات الاحکام سے شروع کرنا ہے، تو ہم نے آیات الایمان سے شروع کرنا ہے۔ چوتھا مرحلہ تھا کہاں سے شروع کریں، یعنی آیات الایمان سے۔ پانچواں مرحلہ تھا کیسے شروع کریں، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کی آیات، آیات کونیہ یا آیات شرعیہ، تو ہم نے آیات کونیہ سے، اور آیات کونیہ میں بھی آپ کو بتایا تھا 2 طرح کی نشانیاں والی آیات ہیں، ایک پوری کائنات کی تخلیق میں بکھری ہوئی ہیں، اور ایک صرف انسان کے اپنے وجود کے اندر، ہمارے اپنے وجود کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ تدریج کے ساتھ حکمت الہی کو ذہن میں رکھ کے، اور ترتیب کیا تھی کہ آیات ایمان کو مفصل سے شروع کرنا، اور پھر چھوٹی صورتیں اور واضح آیات کو پڑھنا۔ تو یہ تدبر کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم الحمدللہ قرآن مجید کی بات کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کس کا کلام ہے، تو یہ تصور ہمارے ذہن میں جو ہے نا وہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے، کس ذات کا کلام ہے، اور کس کتاب کو ہم پکڑنے لگے ہیں، کس کتاب کو ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس کتاب کا ہم سے تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قرآن کی بات سن لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کو کہا تمام جہانوں کے لیے اسے نصیحت قرار دیا، وما هو الا ذکر للعالمین، سورہ قلم کی آیت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور کچھ دوسروں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ تو سرفرازی کنہیں ملتی ہے، بلندی کنہیں ملتی ہے؟ جو اللہ کے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کے احکام بجا لاتے ہیں، اس کی حرام کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، اور ذلت اور رسوائی کن کے ذمہ آتی ہے؟ جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیتے۔ اب دیکھ لیں پریکٹیکلی سارا آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا، انہیں بلندیاں عطا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے عامل بھی تھے اور قرآن کے حامل بھی تھے، اور اس پر عمل کی برکت کی وجہ سے وہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے بہرہ ہوئے۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے، اگر ہم اس میں صرف ہماری زندگی میں محض تلاوت تک ہی رہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس کتاب میں اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے اور ہم اس کے مخاطب ہیں۔
वो हमें ज़िंदगी गुज़ारने के जो उसूल और ज़ाब्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतला रहा है, अगर हम उन्हें इख्तियार करेंगे, अपने शब-ओ-रोज़ को उसके मुताबिक बना लेंगे, क्योंकि अमल असल बुनियाद है ना, तो उसके बगैर कुरान को महज़ समझ लेना भी बेफ़ायदा है। हमें कुरान पाक के हर लफ्ज़ का मतलब भी आ गया, उसका रूट वर्ड भी आ गया, उसको तजवीद से पढ़ना भी आ गया, उसकी तिलावत करना भी आ गया। लेकिन वो हमारे अमल में नहीं ढला, तो तब भी हमें वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। समझने का असल मकसद इस पर अमल करना है, तब असल समझ है, वही असल फ़ायदा है और उसी का नतीजा मिलेगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सबको इस रवायत का पता है, जिस शख्स ने अल्लाह की किताब कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं नहीं कहता कि अलिफ एक हर्फ है, कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यानी ये तीनों हरूफ से मुरक्कब ये लफ्ज़ है और इसके पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलेंगी। और आप देखें इस हदीस में कितनी गहरी बात है। वो गहरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लफ्ज़ की मिसाल दी? अलिफ लाम मीम। ये वो लफ्ज़ है जिसका माना और मफ़हूम दुनिया में किसी को नहीं पता। बड़े से बड़ा स्कॉलर भी आ जाएगा, वो क्या कहेगा? वल्लाहु आलम, कि इसका माना मुझे नहीं पता। ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल किसकी दी? हरूफ़ मुक़त्तात में से एक हर्फ़ की मिसाल दी। ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ आई कि ये कुरान इतनी बाबरकत किताब है, इतनी बाबरकत किताब है कि इसको अगर समझे बगैर भी पढ़ेंगे तो तिलावत का अजर तो मिले ही मिलेगा। इतना मुसलमानों का फ़ायदा है, लेकिन अगर हमें असल तरक्की चाहिए, असल फ़ायदा चाहिए, तो असल फ़ायदा कुरान मजीद पर अमल इसको समझने में और उस पर अमल करने में है। वो हमारा दीन का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है। सैयदना अबू उमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने साथियों यानी पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। ठीक है, सिफारिशी का मतलब क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद को कुव्वत गोयाई अता फरमाएँगे और वो अपने कारी और आमिल के लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का अल्लाह से सवाल करेगा। एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आएगा और ये इसकी सिफारिश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा। इसी तरह बहुत सी सूरतों की फ़ज़ीलत में भी ये चीज़ बयान की गई कि वो अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह की बारगाह में कोशिश करेंगी। इसी तरह एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान को और उनको जो दुनिया में इस कुरान पर अमल करते थे, बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के आगे-आगे होंगी। उसके लिए 3 मिसालें बयान फरमाई। रावी कहते हैं कि मैं उनको अभी तक नहीं भूला। आपने फरमाया कि वो सूरतें इस तरह आएँगी गोया कि वो 2 बदलियाँ हैं। या 2 स्याह साहिबान हैं और उनके दरमियान रोशनी है, या वो दोनों ऐसे आएँगी गोया कि वो पर फैलाए हुए परिंदों के 2 झुंड हैं और वो दोनों सूरतें इसी तरह आकर अपने पढ़ने और अमल करने वाले साथियों की तरफ से अल्लाह से करेंगी। तो इस तरह की मुतअद्दिद सूरतों की हदीस जो है वो फ़ज़ीलत जो है वो हमें मुख्तलिफ इसमें मिलती है। सैयदना उक़बा बिन आमिर उनकी रवायत है कि वो कहते हैं कि हम मस्जिद नबवी के सुफ़े में यानी चबूतरे पर बैठे हुए थे कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुम में से कौन ये पसंद करता है कि रोज़ सुबह-सुबह बतहान की जगह या वादी अकीक जाए और वहाँ से बगैर किसी गुनाह या कता रहमी के 2 बुलंद कुहान ऊँट लेकर आए? हमने कहा, अल्लाह के रसूल हम सभी ये पसंद करते हैं। ऊँट उनकी सवारियाँ थी ना, बेहतरीन सवारियाँ, तो यहाँ भी बेहतरीन सवारियों की बात हो रही है। ठीक है? दुनिया की बेहतरीन गाड़ी समझ लें आप, कि का इंसान जाए और वो बगैर किसी गुनाह और कता रहमी के 2 बेहतरीन लग्ज़री गाड़ियाँ लेके आ जाए। तो हर एक को ये बात पसंद आएगी ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम में से एक आदमी सुबह के वक़्त मस्जिद में जाकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की किताब की 2 आयतें क्यों नहीं पढ़ता और इनका उनका इल्म क्यों हासिल नहीं करता? ये उसके लिए 2 ऊँटों से बेहतर साबित होंगी। 3 आयतें 3 ऊँटों से और 4
प्यार से और इसी तरह जितनी आयतें वो पढ़ेगा या जानेगा, उतने ही ऊँटों से वो उसके लिए बेहतर होंगी। जी, आप अंदाज़ा करें कुरान मजीद की बरकत का। सैयदना हुसैन हुज़ैर बयान करते हैं कि एक रात को वो अपने खलियान में कुरान पढ़ रहे थे कि उनका घोड़ा बिदका। कहते मैंने उसे एक नज़र देखा, फिर मैं पढ़ने लगा। वो दोबारा बिदका, मैंने फिर उसे देखा और फिर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया, वो फिर बिदका। सैयदना हुसैन कहते हैं हत्ता कि मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि कहीं ये उसके पास ही मेरा बेटा याह्या जो है सोया हुआ था कि कहीं ये बिदक कर मेरे बेटे को रोंद ना डाले। चुनाचे मैं घोड़े की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर साहिबान की मिसल कोई चीज़ है और उसमें दिए से रोशन है और मेरे देखने पर वो फ़िज़ा में ऊपर चढ़ने शुरू हो गए, हत्ता कि मेरी नज़रों से ओझल हो गए। कहते सुबह जब मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और सारा माजरा आपके सामने बयान किया, तो आपने कुरान मजीद में ही का हुक्म दिया। मैंने फिर दूसरी रात पढ़ा, दूसरी रात फिर उसी तरह घोड़ा बिदका। मैंने फिर आकर बताया, आपने फिर पढ़ने का हुक्म दिया। कहते मैंने फिर इसी तरह पढ़ा, वही मंज़र मेरे सामने आया और मुझे फिर अपने बेटे के कुचले जाने का अंदेशा हुआ। बस चीज़ देखी जिसमें रोशन चिराग थे और वो आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू हो गए और कहते मैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो आपने फरमाया कि ये फरिश्ते थे, जो तेरा कुरान सुन रहे थे। अगर तू पढ़ता रहता तो सुबह को ये मंज़र लोग भी देखते। ये सही मुस्लिम फरिश्ते आज भी मौजूद हैं, कुरान मजीद आज भी मौजूद हैं, रब ताला आज भी मौजूद है। आज क्या मौजूद नहीं है? आज सहाबा कराम जैसा ईमान मौजूद नहीं है कि हम भी तिलावत करें और ऐसे ही फरिश्ते उतरें। उस ईमान की तलाश है हमें, उस ईमान की कमी है। और एक और रवायत में आता है कि ये सारी तफ़सील सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सकीनत थी, जो कुरान की वजह से नाज़िल हो रही थी और सकीनत से मुराद तमानियत और रहमत है, जो फरिश्तों के साथ नाज़िल होती है। और सईदा अबू मूसा अशरी की एक रवायत है, वो मोमिन की मिसाल बताते हैं कि उस मोमिन की मिसाल जो कुरान करीम पढ़ता है, मीठे लीमू की सी है, यानी नारंगी की सी है कि उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका जायका भी मीठा है। बड़ी प्यारी मिसाल है। और उस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता, खजूर की तरह है, जिसकी खुशबू नहीं है और उसका जायका मीठा है। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, खुशबूदार पौधे की तरह है, जिसकी खुशबू तो अच्छी है और उसका जायका तल्ख है। और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता, वो अंदराइन की तरह है, यानी तुम्मा, जिसमें खुशबू नहीं और उसका जायका भी कड़वा है। तो इसका मतलब है कि कुरान पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला मोमिन, वो खुश रंग भी है और खुश जायका की तरह अल्लाह के यहाँ मकबूल भी है। अल्लाह के यहाँ मकबूल है और लोगों में उसकी इज्जत है। और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता, लेकिन उसका आमिल है, उस पर अमल करता है, अल्लाह के यहाँ लोगों की नज़र में। और कुरान पढ़ने वाला मुनाफिक या फाजिर जो है, उसका ज़ाहिर तो अच्छा है लेकिन बातिन बड़ा गंदा और तारीक है। आखिर में उस मुनाफिक का ज़िक्र है जो कुरान नहीं पढ़ता और उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों ही खराब है। और सईदा आयशा की रवायत आप सबको पता होगी कि कुरान का माहिर क़यामत के दिन उन फरिश्तों के साथ होगा, जो दुनिया में वही इलाही लाने वाले बुज़ुर्ग और नेकूकार होंगे। और जो कुरान अटक-अटक कर पढ़ता है, उसके पढ़ने में उसे मुशक्कत होती है, उसके लिए दुगना अजर है। अब ये दुनिया में कोई स्कूल सिस्टम मुझे बता रहे हैं, जिसमें ये कहा जाए कि जो स्टूडेंट नहीं आता, जिस स्टूडेंट को नहीं आता, उसे डबल मार्क्स मिलेंगे। कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है दुनिया में? कोई स्कूलिंग सिस्टम है ऐसा, जिसमें ये कहा जाए कि जिसको जो क्लास का सबसे नालायक बच्चा है, जिसको समझ आ रही है, जिसको मुश्किल हो रही है पढ़ने में, जिसको बार-बार अटक-अटक के पढ़ता है, उसके उसको डबल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का स्कूल ऑफ सिस्टम है, ठीक है? तो अल्लाह ताला के सारे निज़ाम दुनिया के निज़ामों से बिल्कुल अलग हैं। फिर अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और अहलुल कुरान, साहिब कुरान के बारे में क्या आता है कि साहिब कुरान यानी उसे कुरान पढ़ने और हिफ्ज़ करने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा, पढ़ता जा और दर्जे चढ़ता जा।
और उसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता तिलावत कर, जैसे तू दुनिया में तरतील से पढ़ता था और तेरा मुकाम वो होगा जहाँ तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। ये कुरान मजीद पढ़ने की फ़ज़ीलत और बहुत सारी बेशुमार और अहादीस हैं। जैसे अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है कि जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में इसकी तकरार करते हैं और यतलून तिलावत करने में समझ कर पढ़ने का मफ़हूम ऑलरेडी शामिल है। उसकी तकरार करते हैं या उसका दर्स देते हैं, तो उन पर अल्लाह की तरफ से 4 चीज़ों का नुज़ूल होता है। सकीनत नाज़िल होती है, रहमत उन्हें ढाँक लेती है, फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र फ़रमाता है जो उनके पास होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की और उख़रवी फ़ज़ीलतें रखी हैं। दुनिया में अपने कुरान पे अमल करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़लील और रुस्वा नहीं करता, बल्कि दुनिया में भी उनको वक़ार और इज़्ज़त देता है और आखिरत में भी मिलती है। आज के मुसलमान कुरान पर अमल करके तो देखें, अल्लाह ताला का तो वादा है, ठीक है? तो कुरान मजीद पढ़ने के कुछ आदाब भी होते हैं। मोमिन के बारे में क्या आया? ईमान वालों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया कि जब वो कुरान सुनते हैं, जो रसूल की तरफ नाज़िल हुआ, तो आप देखेंगे कि उनकी आँखों से आँसू बहते हैं। इस वजह से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। वो कहते हैं, हमारे रब हम ईमान ले आए, बस तू हमें ईमान की गवाही देने में लिख ले। हमें कब हमारी आँखें कब नम होती हैं, हमारे रोंगटे कब खड़े होते हैं कुरान मजीद को पढ़ के। अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे, जैसा अल्लाह ताला हमें देखना चाहते हैं। मोमिनों की एक और सिफ़त आती है कुरान मजीद में कि मोमिन तो सिर्फ़ वही हैं जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाएँ और जब उन पर आयात अल्लाह की पढ़ी जाएँ तो उनके ईमानों में इज़ाफ़ा हो जाए और वो अपने रब पर भरोसा रखने वाले हैं। कुरान में ये सारी बातें लिखी हैं। सूरह अनफ़ाल की आयत है। सूरह ज़ुमर में आता है, कुरान से उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। और नाफ़रमानों के लिए आता है कि फिर उनकी जिल्दें और दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए नरम हो जाते हैं। ये फर्माबरदारों के लिए सूरह ज़ुमर में अगली आयत में। तो जब अल्लाह की रहमत, उसके लुत्फ़ व करम की उम्मीद दिलों में पैदा होती है, तो दिल के अंदर सोज़ और गुदाज़ और नरमी पैदा होती है। कल भी मैंने आपको बताया था ना, गम के साथ तिलावत करें, तो गम की कैफ़ियत जो है वो खुशी की कैफ़ियत बहुत बढ़ के होती है। तो कुरान मजीद ऐसी किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ही बाबरकत किताब है और आज आपके लिए एक बात और मैं बताऊँगी कि जैसे हमने कल भी समझा कि तफ़क्कुर और उसका अगला दर्जा होता है तज़क्कुर और तज़क्कुर से अगला दर्जा होता है तशक्कुर। तो आपने इस क्लास में से कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। अल्लाह के इस कलाम से कुछ ना कुछ लेकर उठें। 2 फ़िक्रे लिखें, 4 फ़िक्रे लिखें, 5 फ़िक्रे लिखें, लेकिन लिखें जिसे इस क्लास के बाद आप किसी को बता सकें। उनके बताने से क्या होता है, वो बात आपके अंदर भी पक्की हो जाती है और जब तक आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, आप किसी को समझा नहीं सकेंगे। तो सबसे पहली आपको अपना भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी फ़ायदा देने वाला होता है। तो तफक्कुर करेंगे तो तज़क्कुर हासिल होगा क्योंकि कुरान जो है वो क्या है? ज़िक्रा, अल्लाह ने इसको ज़िक्रा कहा है। ये ज़िक्रा कब बनेगा? जब हमें समझ आएगा और तज़क्कुर के बाद का लेवल है तज़किया का, जो कुरान से रिमाइंडर लेकर अब तज़किया कर लेता है ना, तो फिर अगला लेवल होता है तशक्कुर का, शुक्र का। जो शुक्र करता है, वही इंसान अपनी इबादत में खुशू ला सकता है। इबादत में फ़ोकस है वो। आप किसी को शुक्रिया कब कहते हैं? जब कोई आपके साथ अच्छा काम करता है, अच्छा सलूक करता है, किसी ने आपको चाय दी, किसी ने आपका कोई काम कर दिया, किसी ने आपको कोई तोहफ़ा दिया, तो आप उस बदले में शुक्रिया कहती हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया होता है, क्या उनका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं?
ان کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر دنیا میں ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اللہ رب العزت کا شکر حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیں، بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ بیمار ہو گئے، یا کچھ لوگ اتنی خدمت کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حق تو ان کی خدمت کر کے انسان ادا کر سکتا ہے نا، تو کسی لیول پہ تھوڑا سا یہ حق ادا ہوتا ہے، ان کی بے تحاشا خدمت کر کے۔ کوئی انسان آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اسے بھی واپس تحفہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اتنے عاجز اور بے بس ہیں کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تشکر کا لیول دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم عاجز ہو کر اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے ایسے جھکیں، ایسے عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ، میں اتنی عاجز ہوں، میں اتنی بے بس ہوں کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتی، اس لیے میں تیرے آگے جھک گئی ہوں، تیری عبادت میں نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا ہے۔ کیا ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ کلام میں پاک اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور تصور کریں اس دل کا جس میں قرآن اتر جائے، وہ دل تشکر سے بھرے گا یا نہیں؟ وہ دل پھر اپنی خواہشوں کو پریفرنس نہیں دے گا، وہ اللہ کے حکم کو پریفرنس دے گا، وہ دل اللہ کے آگے جھکنے کو پسند کرے گا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ سنائی نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کی کہ ساری مخلوقات میں سے سب میں سے بہترین کو چنا۔ تو کیوں ہم نے قرآن سے جڑنا ہے؟ کیوں اہل القرآن بننا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ آج آپ کا کوئی بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں انسانیت تو سب سے بڑا مذہب ہے نا آج، تو کیوں ہم قرآن سے جڑے ہیں؟ جو انسانیت کو مذہب سمجھتے ہیں وہ بھی تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیا جواب دیں گے ہم اپنے بچے کو؟ کیسے اس کو آج کے 21ویں صدی کے بچے کو بچی کو ہم سیٹسفائیڈ کریں گے؟ اس کی عقل کو ہم کہاں پہ روکیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، دنیا کے جتنے فلسفے ہیں، جتنے ازمز ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس دنیا کی بات کرتے ہیں، اور اسلام وہ واحد چیز ہے جو ہمیں ہیئر آفٹر سے جوڑتا ہے۔ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دو چیزیں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گی۔ اب مجھے، آپ کو، ہم سب کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن مر کے ہم نے ختم نہیں ہونا، اینڈ آف دی لائف نہیں ہے، ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں حساب دینا ہے۔ تو دو چیزیں اس روز حساب کے دن ہمارے کام آئیں گی، ہماری سفارش کرے گی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ کون؟ ایک قرآن، ایک روزہ۔ اور دیکھیں آج ہم ان دونوں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہمیں نصیب کیا، اور رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، فہم و تدبر کرنے والا بنا دے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ جی، آپ سب کیا کہیں گے عموماً لوگ؟ تعوذ۔ تو سب سے پہلے اس کو کلیریفائی کر لیں کہ یہ تعوذ نہیں ہے، یہ تعوذ ہے۔ طاووس اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آتی ہے۔ تو تعوذ ہے، گرامر پڑھنے والے یہ سن لیں کہ یہ تفاعل کے وزن پر ہے، اور جو نہیں گرامر جانتے وہ سمجھے میں نے کچھ بولا ہی نہیں۔ تو اعوذ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین، واو اور ذال ہے۔ اس کا مطلب ہے، ایک مطلب ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، یعنی کسی کی حفاظت میں آ جانا۔ آپ سب نے الحمدللہ یہ سنا ہوگا، استعاذہ۔ استعاذہ، دیکھیں جو بھی ٹرم ہم پہلی بار سنتے ہیں نا، وہ ہمیں ایلین لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی چیز ہمارے لیے بالکل نارمل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ 2 سال کے بچے کو کہیں گے کہ 2 کا ٹیبل سناؤ، تو وہ نہیں سنا پائے گا، لیکن 10 سال کے بچے کو کہیں گے تو وہ فر سنا دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آج اگر آپ کو کوئی ٹرم پہلی بار سنی لگتی ہے تو وہ آپ کو ایلین لگے گی، لیکن آپ قرآن کلاسز سے جڑے رہے
तो एक मतलब क्या है आऊज़ू का? पनाह तलब करना, किसी की हिफाज़त में आना, इस्तिआज़ा। और दूसरा मतलब है किसी से दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना। और देखें 90% आप रिक्वेस्ट किससे करते हैं? उसी से करते हैं ना जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है कि वो मेरी बात मान लेगा, ठीक है? तो जब बंदा अल्लाह की पनाह में आता है तो उसकी तवक्कुआत किससे होती हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होती है। जब आप किसी की हिफाज़त में जाने को तैयार होते हैं, तो आपका लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़ जाता है उसके लिए। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसहफ़ हाथ में पकड़ते ही देखिए क्या किया? हमें मुसहफ़ हाथ में पकड़ते ही देखिए ये सूरह नहल की आयत नंबर 98 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि आप जब कुरान पढ़ें, कुरान को पढ़ना हो, तो आपने तअव्वुज़ पढ़ना है, शैतान से पनाह माँगनी है, अल्लाह की पनाह में आना है। तो मुसहफ़ हाथ में पकड़ते ही मुझे और आपको अपने साथ अल्लाह ताला ने एक रिलेशनशिप में बाँध लिया। जैसे ही मैंने आपने ताबुज़ पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने मुझे आपको उस रिलेशनशिप में कैप्चर कर लिया और वो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आप ही से सारी तवक्कुआत रखती हूँ और आप ही पर तवक्कुल करती हूँ। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब तुम कुरान की तिलावत करो, तो तुम अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। क्या आता है? फ़ाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो फ़स्तइज़ हुक्म आ गया। जैसे ना मैं कहती हूँ मैंने खाया और मैं कहूँ तुम खाओ, तो कहाँ है हुक्म? कुरान मजीद के भी हैं, फ्रेजेज़ भी हैं, नाउन भी हैं, हुक्म भी है, नवाही भी है, कमांड्स भी हैं। तो जैसे हम दुआएँ भी कमांड्स के अंदाज़ में करते हैं, फ़ेल अमर होता है और फ़ेल अमर 2 तरह होते हैं। 2 तरह के इस तरह होते हैं कि किसी फ़ेल अमर पे अगर आप उस पे अमल कर लेते हैं तो सवाब मिलेगा और अगर नहीं करते तो गुनाह भी नहीं होगा। तो ये होता है कि वो फ़ेल अमर जो है वो वजूब का तकाज़ा करता है कि उस पर अमल करना लाज़िम ही लाज़िम है। तो हम फ़र्क कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ पर जो फ़ेल अमर आ रहा है, वो वुजूब के लिए है या वो मुस्तहिब है? जैसे एक मिसाल समझें कि एक हदीस में आता है कि मगरिब के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकत अदा करो, वहाँ भी फ़ेल अमर का सीगा है। और यहाँ जब आपने मैंने अभी आपको आयत पढ़ के सुनाई कि अल्लाह की पनाह तलब करो, फ़स्तइज़ फ़ेल अमर। तो कौन बताएगा कि कहाँ हुक्म वाजिब है, मानना ही मानना है और कहाँ मुस्तहब है कि पसंदीदा है, कर लो तो बहुत अच्छा है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये बातें हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चली, सहाबा कराम से पता चली, ताबईन के अमल से पता चली, तबा ताबईन के अमल से पता चली, सलफ़ुस सालिहीन के हमने अमल करके दिखाया कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम कुरान मजीद पढ़ा करते थे तो वो तअव्वुज़ पढ़ा करते थे और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वुज़ इसके अलावा भी पढ़ा करते थे। अब देखिए अल्लाह ताला किनको कह रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह वाहिद का सीगा है, अरबी ग्रामर जानने वाले देखते हैं कि ये वाहिद के सीगे में बात की गई है, तो अल्लाह ताला किसको हुक्म दे रहे हैं कि जब कुरान मजीद पढ़ो तो अल्लाह की पनाह तलब कर लिया करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुकाम और मर्तबा तो देखें। अगर पूरी कायनात में अल्लाह के बाद किसी का मुकाम और मर्तबा है, तो वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उन्हें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, ताकि शैतान आप पर हमला ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और कहाँ-कहाँ सिखाया कि शैतान की पनाह लेनी है? लिबास बदलते हुए, बैतुल खला में जाते हुए, बाज़ार में जाते हुए। सूरह मोमिनून में भी अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई जब वो शयातीन हाज़िर हों, तो शयातीन के वसवसों से पनाह सिखाई है हमें। पढ़ें सूरह मोमिनून को और एक जगह और गुस्से के वक़्त ताउज़ पढ़ने का बताया गया। तो आप याद रखें कि जो दुनिया में शैतान से बचने की कोशिश करता रहा होगा ना, मौत के वक़्त भी उसको इस फ़ितने से बचने की तौफ़ीक मिलेगी इंशाअल्लाह।
نماز میں ہمیں درود ابراہیمی کے بعد دعائیں سکھائی گئی. سلام پھیرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں بھی پناہ میں آتے ہیں نا، تعوذ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. تو قبر اور عذاب جہنم سے پناہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، زندگی کے فتنے تو سمجھ آتے ہیں، مسیح دجال کا فتنہ تو سمجھ آتا ہے. یہ فتنۃ الممات کیا ہے، موت کا فتنہ کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ آتا ہے. ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت بھی شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کبھی اپنا موقع جانے نہیں دیتا. نہ وہ 16 سال کی لڑکی کو چھوڑے گا اور نہ وہ 60 سال کی خاتون کو لیفٹ اوور کرے گا. نہ وہ ہمیں زندگی میں چھوڑتا ہے اور نہ وہ موت کے وقت چھوڑے گا. وہ تو اس کا آخری ایڑ لگانے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ریس میں انسان آخری ٹائم پہ آتا ہے نا، تو وہ گھوڑا سارا زور لگا دیتا ہے جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت بھی شیطان، حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کسی قریبی فوت شدہ عزیز کی شکل میں آتا ہے اور آ کے میت اس کے انسان کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے. اس ادھر سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، موت کے فرشتے کی روح قبض کرنے کے لیے. اور وہ شیطان جو ہے وہ اس کے عزیز رشتہ دار کی شکل اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتا ہے میری بات مانو، اسلام کوئی سچا دین نہیں ہے. اور اسکالر کہتے ہیں اس کا وقفہ ہوتا ہے. اور صحابہ اگر کہتے ہیں یہاں بھی انسان خود اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتا، بلکہ اللہ رب العزت اسے ثابت قدمی کی توفیق دیتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے جنہوں نے ایمان پر زندگی گزاری ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ انہوں نے نہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے بلکہ اسے سمجھ اس پر عمل کیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ثابت قدم رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک مسلمان صرف پاسپورٹ کے خانے کی حد تک مسلمان ہے، کبھی کبھار نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی سال کے سال کوئی نماز پڑھ لی. اور دوسرا ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو اکبر رکھتا ہے. اس کے بچوں کی شادی ہو، اس کی اپنی شادی ہو، اس کا کوئی فوت ہو جائے، اس نے کوئی معاملہ کرنا ہو، اس نے تجارت کرنی ہو، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہو، تو وہ اپنے کو صرف جائے نماز کی حد تک اکبر نہیں کہتا، بلکہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے رب کو اکبر رکھتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دیتا ہے، اسے موت کے وقت ثابت قدمی ملتی ہے. اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق دے دے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے زندگی میں جی پی ایس بنایا ہوگا نا، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے. تو اس دعا کو ہر کا حصہ بنائیں گے. یا اللہ موت کے وقت ثابت قدمی عطا کرنا، یا اللہ کلمے کی فیق دینا، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا. ٹھیک ہے، تو ایک میں نے آپ کو یہ بتایا آؤزو کا ترجمہ کہ اللہ سے پناہ طلب کی ہے، اللہ سے پناہ طلب. آج تک آپ جب بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بتائیے مجھے، کوئی ترجمہ بتائے گا اس کا؟ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. ہمیشہ ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں. اب ایک فیلنگ اور سمجھیں، ایک فیلنگ اور سمجھیں. ایک ہے کسی سے کچھ طلب کرنا، مانگنا. اس میں بھی میں نے آپ کو ٹرسٹ آف لیول اور ٹرسٹ لیول کانفیڈنس تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن ایک اور فیلنگ جو اسکالر جو ہیں وہ تعوذ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس فیلنگ کو بھی ذرا اپنے دل سے محسوس کیجئے. کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں اور ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ اگلا بندہ ہمیں دے گا بھی یا نہیں دے گا، ہمیں وہ چیز ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. اچھا، اور ایک دوسری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا ہی اس ذات سے ہے جو لازمن ہمیں دے گا، یعنی جس نے ہمیں دے دیا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے آپ کو کسی، آپ گھر کے اندر ہیں اور آپ کو کسی نے آواز دی، آپ کو بلایا تو آپ نے کہا اچھا بس میں آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب 2-3 منٹ اور گزرے اور آپ وہاں نہیں پہنچی، انہوں نے پھر آپ کو آواز دی تو آپ انہیں کہتی ہیں اچھا بس میں آئی. ٹھیک ہے، ابھی آپ آئے نہیں ہوتے، آپ وہاں سے چلے نہیں ہوتے، آپ وہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کیا جواب میں دیتے ہیں؟ بس میں آئی.
کہ अब मैं आ ही गई, बस मैं पहुँच ही गई। समझ आई बात की? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका एक मतलब ये है कि मैं अल्लाह की पनाह में आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी पनाह से नवाज़ दिया। अब उस रब की किबरियाई को फ़ील करें, उसकी पनाह को फ़ील करें और पनाह माँगना इबादत है। पनाह माँगना इबादत है। इसके लवाज़िमात हैं, इसके अरकान हैं। हम तो बस ऐसे ही औज़ुबिल्लाह पढ़ के और आगे चल पड़ते हैं ना। हमने कभी ये समझा ही नहीं कि हम किस ज़ात से पनाह माँग रहे हैं, किससे बचने के लिए पनाह माँग रहे हैं, क्या माँग रहे हैं, किससे माँग रहे हैं। तो ये 4 अरकान हैं तहफ़्फ़ुज़ के, क्योंकि ये इबादत है। ठीक है? अच्छा, अभी फीलिंग हमने ये समझनी है कि हम उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आ गए। जैसे हमने तावुज़ पढ़ा, तो हमने सिर्फ़ माँगा नहीं है, हम बेयकीनी की फ़िज़ा में नहीं हैं, हम पूरे यकीन में हैं कि हम उस रब की पनाह में आ गए। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इस पर एतराज़ किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको आयत पढ़कर सुनाई फ़स्तइज़, तो इसमें आता है क़राअत, इज़ा क़राअत। अच्छा, अब ये जो इसमें सीगा है, अरबी ग्रामर वालों को पता है कि ये माज़ी का सीगा है। ये माज़ी का सीगा कि जब तुम कुरान की तिलावत कर चुको, तो तब तुम क्या करो? तावुज़ पढ़ो। अच्छा, इसी तरह एक आप सूरह नसर में देखते हैं, सूरह नसर में आता है इज़ा जाअ, ये भी माज़ी है ना, जैसा इज़ा क़राअत ये भी माज़ी है, इज़ा जाअ ये भी माज़ी है। लेकिन तर्जुमा हम क्या करते हैं कि जब अल्लाह की मदद आ जाए और आगे क्या है आयत कि फ़तह नसीब हो जाए, तो क्या करना है? अल्लाह की तस्बीह भी करो, फ़िल अमर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पहले अमल करना है, कहाँ बाद में अमल करना है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि सूरह नहल की जो आयत है वहाँ पर फ़िल अमर आया और माज़ी है, तो हमने कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म करने के बाद तो तावुज़ नहीं पढ़ना, हमने तो पहले अल्लाह की पनाह में आना है। और सूरह नसर में क्या आया कि जब अल्लाह की मदद आ जाए, फ़तह मिल जाए, तो फिर क्या करना है? फिर अल्लाह के आगे झुक जाना है। अच्छा, एक और आयत की मिसाल से समझें, सूरह माइदा आयत नंबर 5, उसमें भी आता है इज़ा कुंतुम, जब तुम खड़े हो जाओ नमाज़ के लिए, तो धो लो अपने चेहरे और अपने हाथ कोहनियों तक, यानी वुज़ू का हुक्म आ रहा है। अब देखें, अब अगर सिर्फ़ कुरान मजीद को अरबी से समझेंगे ना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके तरीके को छोड़ देंगे, तो हम कभी भी असल जौहर तक नहीं पहुँच पाएँगे। आपको एक मिसाल दी मैंने तावुज़ पढ़ने की, एक मिसाल दी मैंने वुज़ू की आयत से वुज़ू करने की, और तीसरी मिसाल दी कि फ़तह आ जाए तो तस्बीह बयान करो। तो सब में फ़ेल अमर आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि काम पहले करना है या बाद में? तो स्कॉलर्स कहते हैं इसको वुज़ू करने की आयत से मिसाल से समझें। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब ये आया ना इज़ा कुमतुम, तो इज़ा कुमतुम के दरमियान में एक लफ्ज़ है जो छुपा हुआ है। अहले ज़ुबान इसे जानते हैं, अरबी ग्रामर वालों को पता है इसे कहते हैं मकसूफ़, छुपा हुआ है। तो स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पर है इज़ा अरदतुम, यानी जब तुम क़याम का, नमाज़ का इरादा करो। इज़ा अरदतुम कुमतुम, जब तुम नमाज़ का या क़याम का इरादा करो तो तुम वुज़ू कर लो। अच्छा, अब ये भी पता है हमको कि क़याम की शर्त वुज़ू नहीं है, वुज़ू की शर्त नमाज़ की शर्त वुज़ू है। वुज़ू की शर्त क्या है? तहारत है, पाकी है। तो इसी उसूल को स्कॉलर्स ने इस्तिआज़ा वाली आयत के लिए भी बताया कि वहाँ पर भी यही है, इज़ा अरदतुम क़िराअतल कुरान, कि जब तुम कुरान की तिलावत का इरादा करो, तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। ठीक है? अच्छा, इसी तरह आपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ सुना होगा, अक्सर स्कॉलर्स ये भी पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, और कुछ स्कॉलर सिर्फ़ ये कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुना हुआ है ना सबने? तो वो समीउल अलीम कहाँ से हम लगा देते हैं? कैसे लग जाता है वो? क्योंकि मोमिन, आपको मैंने शुरू दिन से बताया कि मोमिन तो दलील पर ज़िंदा रहता है, दलील पर मौत उसकी आती है, तो हमें दलाइल तो पता होने चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने ये अल्फाज पसंद किए थे, मुस्नद अहमद में उसकी दलील मिल जाए, और बाकी 3 अइम्मा कराम ने आम तहफ़्फ़ुज़ को रखा। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इन सब ने ये जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनमें से 3 ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
کو پسند کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کو پسند کیا، اور دونوں کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ امام احمد نے اس کی دلیل سورہ حامیم سجدہ کی آیت 41 سے لی، وہاں پہ آتا ہے اللہ پناہ طلب کرو، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت 7 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ سمیع اور علیم ہے۔ تو دونوں فریزز میں کوئی فرق نہیں ہے، اب دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے تعوذ کو پڑھنا ہے تو تعوذ میں ہم نے 3 الفاظ پر فوکس کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں کتنے الفاظ پر فوکس کرنا ہے؟ 3 الفاظ پر، ایک اعوذ، ایک شیطان، اور ایک الرجیم۔ اعوذ کا میں نے ابھی کیا ترجمہ بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ درخواست کرنا، کسی کی حفاظت میں آنا، ٹھیک ہے، پناہ طلب کرنا، حفاظت میں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پہلا تعلق ایموشنل اٹیچمنٹ اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ اللہ میرا بھروسہ، میرا توکل آپ پر ہے، کسی اور پر نہیں، میں صرف اور صرف آپ کی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ میں بالکل کم کم آپ کو بتا رہی ہوں چیزیں ابھی۔ شیطان، شیطان کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک مطلب ہے دور ہونا، اور ایک مطلب ہے غصے میں جلنا۔ ہم سب کو پتا ہے شیطان آگ سے بنا ہے، جن کی کریشنز میں سے ہے۔ دور ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے، نیکی کرنے سے دور ہے۔ اور غصے میں جلنا، اس میں ہمیں پتا ہے کہ شیطان میں حسد ہے، انا ہے، تکبر ہے۔ تو یہ اس لفظ کا بنیادی سا تعارف ہے بس، شیطانہ۔ اچھا، آگے آ کے رجیم، رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر سے کسی کو مارنا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ زانی کی سزا رجم ہے، کہ پتھر سے مار کے اس کو مار دیا جائے۔ دوسرا اس کا مطلب آتا ہے دور بھگایا ہوا۔ تو یہ جو شیطان ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور بھگایا ہوا ہے۔ تیسرا اس کا ایک مطلب آتا ہے وسوسے ڈالنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ سے پناہ کیوں مانگنی ہے؟ اللہ کی پناہ میں کیوں جانا ہے؟ شیطان کو تو ہم مسٹر شیطان کو تو ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے عمل کرنے کے لیے بہت سے پوائنٹس ہیں۔ تو عربی زبان کا ایک بڑا حسن اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بالکل لنگوسٹکلی بھی وہ ایگزیکٹ میننگ دیتی ہے، جیسے جیسے وہ لفظ ہوتا ہے اس کا جو لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے نا، وہ اس پر بھی بالکل پورا اترتی ہے۔ جیسے عربی زبان میں آدم، آدم کس کو کہتے ہیں؟ ریڈ کلے، سرخ رنگ کی مٹی کو۔ اور ہمیں حدیث میں کتنی تفصیل ملتی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو کتنی جگہوں کی مٹی جو ہے وہ اکٹھی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنانے سے پہلے، سیدنا آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہ آدم کا میں نے آپ کو بتایا ہے ریڈ کلے، جہنم کا مطلب کیا ہے؟ آگ، سموم سے نکلا۔ جن، جن کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ جیسے ہم جنین کہتے ہیں، جنین کسے کہتے ہیں؟ ایمبریو کو۔ ایمبریو کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اسے بھی ایمبریو کہا جاتا ہے، جنین۔ تو جن میں آگ کا مفہوم بھی آتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کا مفہوم بھی آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جن کی اسپیشی پیدا کی تو انہوں نے اپنے پہلے بچے کا نام جن رکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اسی طرح اپنے بچوں کے نام رکھتے گئے، وہ زمین پر تھے۔ اور یہ جو پہلے مسٹر جن اور جننی تھے، یہ سارے، اور ان کی آگے سے جو نسل ہوئی، وہ یہ سارے بڑے متقی جن تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ فرشتے بھی ان سے انسپائر ہو گئے۔ کہ فرشتے کہتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو ول پاور نہیں ہوتی نا، تو فرشتے بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس فری ول تھی، اختیار ہے کہ چاہے تو اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے۔ تو اس کے باوجود یہ اتنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان فرشتوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ ان میں سے کچھ نیک لوگوں کو یہاں آسمانوں پر بلایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جن کو، یہی جسے ہم بعد میں ہم جسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، اسی جن کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بلایا اور اسے وہیں پہ رہائش دے دی۔ اس کا نام روایتوں میں عزازیل آتا ہے، جسے آج ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہیبریو لینگویج کا، عبرانی لینگویج کا لفظ ہے عزازیل۔ جیسے دیکھیں آپ سب کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بنی اسرائیل اور فرشتوں کے نام بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہیبریو لینگویج میں اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندہ،
ईल का मतलब है अल्लाह। तो इस बनी इसराइल का मतलब है अल्लाह के बंदे के बेटे और सबको पता है ये सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का लौता था। तो इस आगे अज़ील और इमाम तिबरी हैं एजाज़ कहते हैं जिसे ताकत मिली हो, जिसे मज़बूत किया गया हो, इसे अल्लाह की तरफ से मज़बूत कर दिया है, जिसे पहले आसमान पर लाया गया। ठीक है? तो जब तक इसने नाफ़रमानी नहीं की ना, जब इसने नाफ़रमानी की तब इसका नाम इब्लीस पड़ा और इब्लीस किससे है? अबलस यासु, मायूस, नाउम्मीद। तो इसी तरह स्पीशीज़ थी जिन्नों की, ये ज़मीन पर रहती रही, बसती रही, ये बड़े जिन थे और ये अल्लाह की इबादत करते थे। फिर आहिस्ता वक़्त गुज़रा और इनमें नफ़ाक़ आ गया। फिर इनमें गिरोह बनने लगे, फिर इनमें लड़ाइयाँ होने लगी। तो इनमें इनने इनमें फिर इब्लीस ने 800 अंबिया भेजे और इन जिन्नों ने सब के सब को कत्ल कर दिया। अब इज़राइल तो पहले से ऊपर था, 7वें आसमान पर था। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कहा कि तुम ज़मीन पर जाओ, मेरी ख्वाहिश है तुम ज़मीन पर जाओ, इनसे लड़ो। तो कहा अल्लाह आपका आपकी ख्वाहिश है? मेरे लिए ये हुक्म है, मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके साथ 70 फरिश्ते भी नाज़िल किए और ये इज़ाज़ील जो है ये खुशी से ज़मीन पर आया और इन तमाम नाफ़रमान सब जिन्नों से इसने लड़ाई की और सबको कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ दुनिया में नेक जिन बचे और इसे अल्लाह ताला ने वापस उठा लिया और फिर अल्लाह ताला इतना इसके काम से खुश हुए कि इसे अपग्रेड कर दिया। अल्लाह 7वें आसमान पर अपग्रेड कर दिया। तो इमाम हसन बसरी कहते हैं कि 70,000 साल से ज़्यादा यहाँ इसने मज़ीद बढ़ा दिया, इसे और मज़ीद आगे कर दिया। आप सबने नाम सुना रिज़वान, तो रिज़वान जो है ये जन्नत के मेन गेट का भी नाम है। तो फिर इसने अल्लाह ताला से दुआ की इसे गार्ड बना दें, तो अल्लाह ताला ने इसे गार्ड बना दिया। 1000 साल तक वो वहाँ इबादत करता रहा और फरिश्ते इससे बड़ा इंस्पायर होते थे कि ये कितना इबादत गुज़ार है कि इसमें विल भी है और इसके बावजूद ये अल्लाह की इबादत करता रहा। तो एक दिन ऐसा देखा कि उस दरवाज़े पर कुछ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये था होंगे, वो दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे और जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे लेकिन अल्लाह के रास्ते से हट जाएँगे, वो यहाँ से भी दूर कर दिए जाएँगे और उन पर अल्लाह की लानत होगी। तो ये अज़ाज़ील बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला हो, तो वो उस ट्रैक पर आने के बाद, हिदायत के रास्ते पर चलने के बाद वो डिट्रैक कैसे हो सकता है? उसने कहा ये तो बड़ी बदबख्ती की बात है। तो ये उन डिट्रैक करने वाले लोगों के लिए ना बददुआएँ करनी शुरू कर दी। तो उसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम को बनाने का इरादा किया। हमें हदीसें बड़ी तफ़सील मिलती है किस मिट्टी से बनाया, बन फिर पुतला बनाया भी अल्लाह ताला ने अपनी रूह जो है उसमें नहीं फूँकी थी और उसे गार में रख दिया। उन्होंने भी देखा और उन्हें समझ नहीं आई, वो आ गए और पास नहीं गए। ये हम सबके साथ भी होता है ना, जब हम नई चीज़ें तो होता है, तो या तो हम डर जाते हैं या फिर हम जाके उसको उठा के उलट-पुलट कर तो फरिश्ते डर गए, उन्होंने उसके पास नहीं देखा, वो घबरा गए और इज़ाज़ील ने भी इसको देखा, नई चीज़ देखी, तो उसने देखा और उसने जाके देखा कि इसमें तो कुछ सुराख है। तो सुराख किया और घूम फिर कर वो उसने हर तलाशी ली और बाहर आकर उसने कहा ये तो बड़ी कमज़ोर सी चीज़ बनी हुई है। और स्कॉलर्स कहते हैं कि उस में वो पहचान गया था कि इंसान की कमज़ोरियाँ क्या-क्या हैं। इंसान के कौन-से सुराख हैं। आँखें, कान, नाक, मुँह और 2 हाथ जोड़ने वाले। और उसकी शर्मगाह, यानी शर्मगाह का सुराख, कान का सुराख, नाक का सुराख, मुँह का सुराख। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जब वो अंदर गया, हर सुराख से दाखिल हुआ तो वो पहचान गया था इंसान की कमज़ोरियों को और वो आज भी इन्हीं जगहों से इंसान पर हमला करता है। और फिर जब उसे सजदा का हुक्म दिया गया, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात ना मानी। उसने क्या किया, क्योंकि वो जब उसने देखा था ना, उसने उसी वक़्त अपनी राय बना ली थी, अपनी सोच बना ली थी कि ये तो मेरे मुकाबले में बड़ी कमतर सी मखलूक है, बड़ी कमतर सी चीज़ है।
आज देखें, आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं और जब हम किसी दूसरे को रोज़ा रख के जो सारा दिन मोबाइल पे सर्फिंग कर रहा है, कुरान नहीं पढ़ा, तो हम अपने आप को उससे बेहतर समझते हैं, ठीक है? नमाज़ें पढ़ रहे हैं और इसने रोज़ा भी रखा हुआ है और इसने नमाज़ भी नहीं पढ़ी कोई। किसी को हम तब देखते हैं तो हम अपने अपने से कम उसको किसी को कम हिजाब में देखते हैं, अपने हम पूरे कपड़े देखते हैं तो हमें लगता है कि वो ईमान में भी कम है। हम उसे अपने से कमतर समझते हैं। तो समझ लें, अपने आप को समझा लें कि अगर हम ऐसा समझते हैं ना, हमारी सोच में कहीं भी ये चीज़ आती है, तो हम शैतान की लेगेसी को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो हमें तो अंबिया की लेगेसी को फ़ॉलो करना है। अगर हम ये करेंगे और अपने लाइक माइंडेड पीपल में बैठ के उन लोगों की, फिर हम तो दीन में मुफलिस हो गए, बैंकरप्ट हो गए। ठीक है? हम तो अल्लाह के वो अल्लाह ताला ने कहा, प्यारे नबी ने मैंने बताया ना कि वो मुफलिस हो गए हम तो क़यामत में, ये सारी नेकियां चली जाएँगी। तो इज़ाज़ील कैसे इब्लीस बन गया? अल्लाह की मखलूक में उसने खामी समझी, अपनी राय आगे रखी अल्लाह के हुक्म के आगे, अपनी सोच को अल्लाह के हुक्म के आगे रखा। इस अकल ने इज़ाज़ील को लाखों सालों की इबादत के बावजूद कुछ भी ना करने दिया। आज हम छोटे-छोटे गुनाह करते हैं ना तो सोचते हैं कि अच्छा इतनी सी बात पे अल्लाह हमें कुछ नहीं कहेगा। तो इस इज़ाज़ील को सामने लाखों साल की इबादत को सामने रखा करें, जिससे पनाह माँगते हैं ना, इसकी थोड़ी तफ़सील भी हमें पता होनी चाहिए कि ये इब्लीस कैसे बना था, ठीक है? इब्लीस क्यों बना? कंपैरिज़न की वज़ह से, इसे ईगो की वज़ह से और दूसरों की कमज़ोरियों पर नज़र रखने की वज़ह से। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई है कि जब हमने कुरान को पकड़ा तो शरई तौर पर इस इज़ाज़ील से पनाह माँगनी है, उसके माइंडसेट से पनाह माँगनी है, लेगेसी से पनाह माँगनी है। स्कॉलर्स कहते हैं कि जहाँ पे शैतान रजीम का लफ्ज़ आता है, वहाँ में इसमें एक और कैटेगरी भी आती है कि हर वो अकीदा, हर वो बात जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर दे और गुनाह और मानी करीब कर दे, वो भी इसमें शामिल है। ऐसा दोस्त जो आपको चलना तो बड़ा मुश्किल दिखाए और गुनाह का रास्ता बड़ा आसान करके दिखाए। तो शयातीनुल इंस भी होते हैं, उससे भी पनाह मांगने की जरूरत है। जिस इंसान में ईगो हो उससे भी पनाह मांगे। ये ईगोटिस्ट इंसान बड़े टॉक्सिक होते हैं। ये अपने आप को आपसे बेहतर समझ रहे होते हैं और दूसरे इंसान की इज्जत नफ्स को रोंद देते हैं। ये टॉक्सिक पीपल बड़ा तंग करते हैं। हर वो इंसान, हर वो लाइफस्टाइल, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, उन सब से पनाह मांगे। सूरह बकरा की आयत नंबर ने क्या फरमाया कि जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, इनका तो हम सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ शैतानों से किन से? वो अनसीन शैतानों से मिलते हैं, वो जिन्नों से मिलते थे, अपने जैसे इंसानों से मिलते। तो यहाँ पर शयातीनुल इंस मुराद, इन दोनों से पनाह मांगनी है, शैतानुल जिन्नों से भी और शैतानुल इंस इंसानों के शैतानों से भी। ठीक है? तो शैतान मेथोडोलॉजीज़ इख्तियार करता है इंसान को बहकाने के लिए, शरीयत से डिट्रैक्ट करने के लिए, वो बहुत सारे करता है। और सबसे पहली कोशिश उसकी क्या होती है? वसवसा, वो दिलों में वसवसा डालता है। वसवसा का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो पीछे से बार-बार आए। शैतान इतना विस्पर करता है कि एक लेवल पे इंसान ये समझने लग जाता है कि ये शैतान नहीं मेरे दिल में डाल रहा, बल्कि ये मेरा ही ख़्याल है। ठीक है? का जो दौर है, आज शैतान सिर्फ़ मुसलमानों और काफ़िरों में नफ़रतें डेवलप नहीं कर, मुसलमानों के अपने गिरोहबंदियों में नफ़रतें डेवलप नहीं कर रहा, भाइयों भाइयों में नफ़रतें डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि आज के दौर में शैतान अगर माँ-बाप डेवलप कर रहा है। आप आज देखें, आज आप माँ-बाप की जगह पे हैं, मैं माँ-बाप की जगह पे हूँ और हमारे सामने और पीछे मुड़ के देखें, जब हम बच्चों के लेवल पे थे और हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स थे,
तो आज हम अपनी माँ की कार्बन कॉपी भी बन के ना अपने बच्चों को पालना चाहें ना, कि जैसे हमारी पाला, तो हम नहीं पाल सकते। आज के दौर के चैलेंजेस आज के दौर के चैलेंजेस बिल्कुल और जी, तो आज के चैलेंजेस बिल्कुल और हैं। आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हम में और अपने बच्चों में। वो ऐसे बिल्कुल जैसे बिल्कुल उलझी हुई रस्सी है। आप तसव्वुर करें कि अगर इस उलझी हुई रस्सी को हम सख्त हाथों से खोलेंगे, तो क्या वो खुलेगी या वो मज़ीद उलझ जाएगी? तो हमें अपने और अपने बच्चों के जो दरमियान चैलेंजेस हैं, हमें उनके लेवल पे आके सोचना होगा और उनके लेवल पे आके हमें हल्के हाथों से इस उलझनों को, इस कन्फ्यूजन्स को खोलना होगा। अगर खींचेंगे तो मज़ीद सख्ती आ जाएगी। आज के पेरेंट्स को, मुझे, आपको अपने बच्चों के साथ बॉन्ड्स बनाने के लिए आज के चैलेंजेस का इल्म होना ज़रूरी है। शैतान उन्हें किस-किस जगह पे डिट्रैक्ट कर रहा है, शैतान हमें किस-किस जगह पे डिट्रैक्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे सोचना ज़रूरी है। तो कुरान मजीद को जब हमने पकड़ना है, तो हमने तआवुज़ इस को ज़हन में रखना है और उस रब की ज़ात को ज़हन में रखना है। उसके साथ अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और वो इमोशनल अटैचमेंट जो अल्लाह ताला हमें देना चाहते हैं, हमें उस अटैचमेंट के साथ कुरान मजीद को खोलना है। हदीस में क्या आता है कि कुरान मजीद क्या है? एक रस्सी है, जिसका एक सिरा पढ़ने वाले के हाथ में, दूसरा सिरा अल्लाह की इज़्ज़त के हाथ में। उस रस्सी को महसूस करना, उस फीलिंग के साथ कुरान मजीद को खोलना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तआवुज़ पर बात की। तआवुज़ क्या है? और अभी तो तआवुज़ को मैंने अभी आपको जो ये इबादत के शिर्क कैसे होता है, इसके अरकान क्या हैं और इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हैं, अभी हमने उस पर तो बात ही नहीं की। क्योंकि देखो मैंने कल भी बताया था कि ये जो कुरान मजीद है, इसका एक-एक चीज़, एक-एक लफ्ज़ ये अजायब में से है। आप सारी ज़िंदगी भी लगा दें, इसके माना और मफ़हूम तक पहुँच ही नहीं सकते। क़यामत के नए और नए अल्फ़ाज़ जो हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे। आपका मेरा हम सबका तजुर्बा है, हमने वो आयत कई बार पढ़ी होती है। वो सूरत कई बार पढ़ी होती है, लेकिन फिर हम एक वक़्त आता है जब उसे हम नए तरीके से सुनते तो कहते हैं, या अल्लाह! इस लिहाज़ से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इस लिहाज़ से तो पहले कभी हमने हमारे सामने ये माना आया ही नहीं था। होता है ऐसा हमारे साथ। तो जब हर साल या हर दफ़ा जब भी हम उस आयत को तो वो आयत जो है वो अपना आप एक नए एंगल से हम पे अपना आप खोलती है। जो उससे पहले हमारे ज़हन में भी नहीं आया होता वो उसका माना, वो मफ़हूम। तो अल्लाह ताला से दुआ माँगे कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने का, खोलने का, समझने का, तफक्कुर करने का, तदब्बुर करने का और फिर तशक्कुर के लेवल तक जाने का की तौफ़ीक दे। हमें ज़िंदगी में भी कुरान मजीद से जुड़ने की तौफ़ीक दे और मौत पे कलमा नसीब करे और हमारा खात्मा जो है, खात्मा बिल ईमान हो। ये बड़ी बरकत की बात है, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और अल्लाह ताला हमारी सबके ईमान की हिफाज़त करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।